हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। सो वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का इट इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। मॉडल ऑफ डीएनए। सो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया दैट इज डीएनए का, दैट इज जिसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज न्यूक्लियोटाइड इज अ combination of what? Pentose sugar, phosphate group and nitrogenous bases. So suppose सारे nucleotide they combine and they form a strand of DNA. So we can say that DNA it is a polymer of nucleotide, and we can say that DNA it consists of two strands and two strands runs anti-parallel to each other. For example, if we have two strands of DNA. These strands of DNA they are spirally coiled and they run parallel to each other and they have anti-parallel orientation. So we can say that हम ये कह सकते हैं कि जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के they are what? They are anti-parallel to each other. So we say it is made up of two polynucleotide chain. So nucleotide से बनी है. It is made up of what? Nucleotide. So we can say it is made up of two polynucleotide चेन्स. सो डीएनए की बात करें तो ये बना होता है दो न्यूक्लियोटाइड चेन का, एंड ये न्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये किससे बनी होती हैं? दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ऑलरेडी टोल्ड यू न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बना है? दैट इज नाइट्रोजनस बेस, pentose sugar. In this case we have deoxyribose sugar and it also contains phosphate group. So this is your nucleotide. These nucleotide combine and they form a chain जिसे हम बोलेंगे polynucleotide chain. So DNA जो है ये बना है किससे? That is it is made up of two polynucleotide chain. Chains की बात की जाए, so these two chains they run anti-parallel to each other. So what next? These chain या two strand of DNA runs anti-parallel. What anti-parallel means? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वन चेन की पोलरिटी एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चेन ले रहा हूं, ये मैं स्ट्रैंड ले रहा हूं, एक स्ट्रैंड की जो पोलरिटी दैट इज योर फ्रॉम 5' to 3' and another one has 3' to 5' end. Here the 3' and the 5' they represents, ये 3' और 5' क्या represent कर रहे हैं? 3' and 5' represents the free carbon of pentose sugar. So what they represent? This 3' and 5' they represents the free carbons of what? Pentose sugar. And we can say that these two strands are anti-parallel in the sense one has 5' 3' orientation whereas another strand has 3' to 5' polarity, and this is your anti-parallel. Next strands की बात की जाए तो the backbone of the strand is made up of that is phosphate group plus pentose sugar. एंड अगर हम
बात करें दो स्ट्रैंड्स, these two strands are joined with each other by the hydrogen bonds formed between the nitrogenous base of these polynucleotide chains. So we can say that यहां पर हम कह सकते हैं कि in these strands purine are paired with pyrimidines. Purines are paired with what? Pyrimidine. That is, adenine always pair with thymine by double hydrogen bond, whereas cytosine always pair with guanine with the help of triple hydrogen bond. इसे हम बोलते हैं, this is also known as base pair rule. That is, adenine pair with thymine by double hydrogen bond. In the same way, guanine pair with cytosine with the help of triple hydrogen bonds. So ये bonds जो हैं, these bonds, these are your hydrogen bonds. So ये दो strand जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं, किसकी वजह से? With the help of these hydrogen bonds, and these hydrogen bonds, these are actually hydrogen bonds. So these hydrogen bonds are found between the nitrogenous bases of two polynucleotide chains. And this is known as, इसे बोलते हैं what we use term base pair rule. That is, base pair rule क्या बोलता है कि जो purine always pair with pyrimidine, that is adenine pair with thymine by double hydrogen bond, whereas cytosine pair with guanine by triple hydrogen bond. Now स्ट्रक्चर को देखें जरा थोड़ा सा, तो if ये हेलिक्स की बात करें, सो जो मॉडल दिया था, जो स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, इनके अकॉर्डिंग द हेलिक्स जो है इट इज कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड दैट इज मैनर. सो इसमें जो कॉइलिंग थी दैट इज व्हाट? कॉइलिंग इज इट इज राइट हैंडेड. ओके, सो कॉइलिंग इसमें क्या है? इट इज राइट हैंडेड. नाउ जो डायमीटर है डीएनए का, दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो डायमीटर है, दिस इज योर 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर. और द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट टर्न, और वी कैन सी दैट इन डिप्रेशंस को हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज माइनर ग्रूव्स. इस साइड शो करता हूं, दीज आर नोन एज माइनर ग्रूव्स and this one major groove. So the distance between minor groove to minor groove or major groove to major groove, or we can say that DNA completes its one turn. एक complete turn की बात की जाए, उसका जो distance है that is 34 angstrom और 3.4 nanometer. So ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है. Diameter 20 angstrom and that is the complete turn की लेंथ की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, that is your 34. Now one more thing here is, एक complete turn की बात करें, in a one complete turn there are, in one complete turn there are 10 base pair. How many base pair? In one complete turn there are 10 base pair. और अगर बात करें यहां पर एक कंप्लीट टर्न का जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, और मैं बात कर रहा हूं कि अगर बेस पेयर कितने हैं 10, तो दो साथ वाले बेस पेयर के डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना होगा? दैट इज ऑफ कोर्स वी कैन से दैट 0.34. जैसे हमारे पास है 3.4 नैनोमीटर, तो इट बिकेम व्हाट? 0.34. सो वी कैन, क्या बोला हमने कि जो आपका एक कंप्लीट टर्न में जो बेस पेयर है दैट इज योर व्हाट? 10. सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर कितना होगा? इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम इट इज 3.4 and in term of nanometer it is 0.34 nanometer.
एंड हेलिक्स मैंने बोला इट इज राइट हैंडेड मीन्स इट इज व्हाट, क्लॉक वाइज। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, दैट इज मॉडल दिया इन 1953। इसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इट इज अ डबल हेलिक्स मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, polynucleotide chain. These chains run parallel, but they have the opposite polarity. That is, they have anti-parallel orientation. That is, if one strand has 5' to 3' polarity, then the other one has 3' to 5'. DNA की बात करें, the backbone of the DNA, that is this backbone. The backbone of the DNA is made up of pentose sugar and phosphate group, whereas two strands are joined with each other by hydrogen bonds. and वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहे हैं, वो हम पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल। जो एडेनिन है ऑलवेज पेयर विद थायमिन, वेयर एज साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वी कैन सिंपली से कि दो आपके जो चेन्स हैं, दो आपके जो स्ट्रैंड हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट मैंने डायमीटर की बात बोली, दैट इज योर 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। एंड इफ इट अबाउट द कंप्लीट टर्न की बात करें, दैट इज 3.4 नैनोमीटर। एक कंप्लीट टर्न में देयर आर व्हाट, कितने बेस पेयर हैं, देयर आर 10 बेस पेयर। एंड बेस पेयर्स के बीच की बात की जाए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर दैट इज 0.34 नैनोमीटर। और इसकी जो पोलैरिटी दैट इज ओरिएंटेशन, दैट इज इट इज योर राइट हैंडेड हेलिक्स है और इट इज आल्सो नोन एज क्लॉकवाइज। सो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, वी टॉक अबाउट दैट इज योर टाइप्स ऑफ डीएनए। थैंक यू।